episode of Investing Fool, where we talk about no nonsense investing. We talk about DIY, momentum investing. एंड आज एक नया आइडिया आया कि थोड़ा डेली लेवल पे भी वीडियो रिलीज करते हैं टू सी हाउ द पोर्टफोलियो हैज परफॉर्म थ्रू आउट द डे। और मतलब पूरे दिन में यहाँ वहाँ के आइडियाज भी कुछ कुछ आते रहते हैं। सो इफ आई गेट समथिंग लाइक दैट, इफ आई सी एनीथिंग, इफ आई सी एनी न्यू स्टॉक, वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ just for educational and learning purpose, right? तो this I have been saying from the beginning, ये कोई भी financial recommendation या कुछ नहीं है. This channel is just for edutainment, education and entertainment, and none of this is financial recommendation. Okay. So एक तो हम ये देखेंगे कि पोर्टफोलियो ने आज कैसे परफॉर्म किया है, and we will look at all the stocks. There would be movements here and there every day. आज के भी हम देखेंगे, and then I will discuss one stock which you already would have seen on the thumbnail of this video also. So let's get started. So this is the performance for today. If you can see, the buy price is the price at which we have bought the stock in the portfolio. So जैसे ऊपर के 15 हैं वो starting से हैं हमारे पोर्टफोलियो में, and we haven't sold even though like some of these stocks have given pretty negative ratings, negative returns also, but हम कभी बोल नहीं सकते कि कौन सा कब चढ़ जाएगा, कौन सा कब नीचे आ जाएगा, right? So we haven't sold. For example, if you see this stock Safari, it is continuously going down. Even now I don't have any hopes of it making it back again, और January 15 के rebalancing में ये पक्का निकलने वाला है ये स्टॉक। पर फिर भी I have not resorted to any mid period exits, tactical exits मैंने अभी कुछ नहीं किया है, just because and that might change in the future also, but just because जो इनिशियल प्रेमिस था इस चैनल का और इस पोर्टफोलियो का भी, वो ये है कि महीने में एक बार चेंज करना है। हर दिन आके हमको मार्केट देख तो सकते हैं, पर हर दिन कोई ऐसे बाय एंड सेल कॉल्स नहीं लेने हैं हमको, राइट? डिस्क्रिशनरी और टेक्निकल सेल्स या बायज नहीं करने हैं हमको, और एंट्री एग्जिट सारी रीबैलेंसिंग के टाइम पे ही होगी। सो these are the 20 stocks. The notional portfolio is of 20 lakhs, 1 lakh in each stock. यहाँ पे इस चार्ट में मैंने number of shares etc नहीं दिखाए हैं. Everything will be, because everything is relative, right? फर्क नहीं पड़ता तुम 20 लाख के पोर्टफोलियो में कर रहे हो 20 करोड़ के, okay 20 करोड़ में भी पोर्टफोलियो का प्रॉब्लम आ सकता है because of liquidity constraints, but like let's discount liquidity for some time. अगर हम लिक्विडिटी को इग्नोर करते हैं जस्ट फॉर अ मोमेंट, तो द बेसिक आइडिया इज द सेम, सब कुछ परसेंटेज के टर्म्स में होगा। सो एंड वन अदर थिंग, यू माइट बी हियरिंग अ लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। मेरे को वीडियो शूट करना ही था, मार्केट बंद हो गया है, एंड दिस नॉइज इज जस्ट नॉट स्टॉपिंग, सो आई हैव टू डू इट रिगार्डलेस। So okay, so आज के परफॉर्मेंस हम अगर देखते हैं, so if you can see in the 6th column it shows the one day change, और आज हम देखते हैं कि हमारे जो रेलवे के स्टॉक्स हैं, which is Ircon in the 4th row and IRFC in the last row, both have rallied today. Ircon by almost 7%, IRFC 3%. The next good performer, if I can say, and this has been a consistent performer, मेरा थोड़ा सा bias भी आ गया है इस स्टॉक में, which is Birla Software. It again moved by 3%. And on the laggards front, we have जो हमारे promising stocks थे, जो काफी टाइम से रिटर्न दे रहे हैं, और मतलब अभी थोड़ा मोमेंटम उनमें ठंडा हुआ है, but they still, I mean, we're still sitting on the highest profits ever on them, which is the power finance stocks. और आज PFC और REC दोनों नीचे थे। ये एक पेयर ऑफ स्टॉक्स हैं जो मैं देखता हूँ कि हमेशा टैंडम में बढ़ते हैं गिरते हैं, राइट? PFC 3% बढ़ जाएगा, REC भी ऑलमोस्ट 2.5% बढ़ा हुआ रहता है, कभी 2% गिरते हैं, दोनों 2% गिरते हैं। आज भी तुम देखो, REC has dipped by 1.6%, and this one PFC okay, PFC is today minus 0.3% for some reason, but जब तक मैं देख रहा था, is an I think up to around 1 PM today, ये दोनों almost similarly down थे, right? और PFC
हो सकता है आज कम गिरा है क्योंकि कल बहुत ज्यादा गिरा था, कल ऑलमोस्ट 3% गिरा था ये। और सो दीज आर द लैगर्ड्स, एंड इन मोमेंटम यू नेवर नो कि कौन सा स्टॉक बढ़ जाएगा, कौन सा घट जाएगा, एंड द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट इवन लो, राइट। 7% कोई स्टॉक बढ़ जाना इज नॉट, आई मीन इट्स नॉट एन एवरीडे ऑकरेंस। और कल जैसे पॉलीकैब भी बिकॉज ऑफ अ न्यूज ड्रिवन एक्शन, पॉलीकैब like tanked almost by 9% yesterday. It was a very bad pattern, right? अगर एक दिन का पैटर्न देखो, एक स्टॉक एक दिन में 9% गिर जाता है तो it doesn't feel good of course, but if we see आज थोड़ा सा रिकवर किया पॉलीकैब ने, and mid of day when it was like around 2% up from yesterday's fall, I took a tactical decision to actually sell some of the units, okay, some of the units from my other portfolio. इस momentum portfolio में we won't change anything, we will stick to the rules, और हम like likely Jan 15 को ही करेंगे unless again Polycab starts falling from tomorrow. अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब then there is no end, right? If you can clearly see कि मतलब अभी रीबैलेंसिंग करने में सिर्फ 3-4 दिन ही बचे हैं और स्टॉक में आ गया है काफी डाउन मोमेंटम, तो कोई मतलब नहीं है उसको रखने का, राइट। अगर 2-3 दिन ही बचे हैं तो जस्ट निकल जाओ। एंड रिलेटेड टू दैट इज अनदर मैटर, ये डेली वीडियो जो है आई विल ट्राई टू डू दिस एवरी डे, बट विथ वर्क एंड ऑल आई मे नॉट बी एबल टू डू इट, बट in case you like it, like if you want this analysis every day and the other pieces of information that I will also share, so let me know in the comments. If you haven't subscribed to this channel, please subscribe so that similar content you can keep getting, and if you like if you want this kind of video, this daily video as well, then let me know in the comments below ताकि मुझे पता चले कि audience चाहती क्या है, right? And basis that I will make some tweaks also. अभी तो ये तो like this is the first video of this format, so as we go along maybe I'll include some more data points also, और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये shape up होता है, okay? And okay, apart from that most other stocks में इधर उधर 1% 2% इधर उधर है। the entire so what I was saying is कि कौन सा थीम किस दिन चल जाए ये पता नहीं चलता, मतलब बुल रन हो रहा है, वी आर सम आर सेइंग वी आर इन अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन फेज, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रिगर मे बी फ्रॉम द यूएस, एंड सम स्टॉक्स आर गोइंग साइडवेज। कौन किस दिन ऊपर चला जाता है, जैसे आज रेलवे स्टॉक्स, राइट, आज रेलवे स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं, और दी पावर स्टॉक्स पीएफसी को देख लो, आरईसी को देख लो, एनटीपीसी को देख लो, राइट, सारे नीचे हैं आज, और किसी दिन फिर एनटीपीसी 4% ऊपर हो जाएगा। इफ यू लाइक लुक एट न्यूज, इफ यू सो शेयर मार्केट में हमेशा क्या होता है कि कुछ चीज इट इज इन्वेस्टर बिहेवियर लेड, राइट, तो कुछ चीज बढ़ जाती है, कुछ चीज घट जाती है, और फिर लोग रीजन ढूंढने निकलते हैं कि आज क्यों बढ़ाई है और आज क्यों घटाई है। तो रीजन हम तो मोमेंटम में वैसे ही ज्यादा देखते नहीं है रीजन, पर अगर रीजन देखना भी हो तुमको तो कुछ ना कुछ तुम ढूंढोगे, तो अभी तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पर कुछ ना कुछ न्यूज में मिल ही जाएगा कि इरकॉन इस वजह से बढ़ा, कि कोई ऑर्डर बुक कुछ आ गया है, कुछ नया हो गया है, बट ऐसी चीजें कुछ मतलब न्यूज ना होने से भी मतलब न्यूज बनाई जाती है, राइट। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि हम किसी चीज को बस असाइन कर देते हैं कि हाँ इस वजह से ये ऊपर गया होगा या इस वजह से ये घटा होगा। हमको कंक्लूसिवली किसी को कुछ नहीं पता, किसी को घंटा कुछ नहीं पता। वो जो टीवी एंकर्स भी बोल रहे हैं, जो एनालिस्ट भी बोल रहे हैं, वो इधर उधर देखा सुनी सब बात करते हैं, कोई एक कुछ निकाल देता है कि हाँ इस वजह से बढ़ा होगा, तो सब उसी को लेकर छाप देते हैं, राइट। बट हमको क्या ही करना है डे टू डे मूवमेंट्स में, हम तो मंथली बेसिस पे देख रहे हैं, बट ठीक है, अगर कोई न्यूज आएगी तो पता चल ही जाएगा। स्टॉक्स को फॉलो करते हैं थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा, राइट। जैसे कल पॉलीकैब जो गिरा था, एंड आई रिलीज्ड अ शॉर्ट्स आल्सो रिगार्डिंग दैट, कि कुछ न्यूज आया था आईटी रेड का, और 200 करोड़ का इवेजन था, तो टैक्स इवेजन था 200 करोड़ का, और कंपनी का 7,000 करोड़ का मार्केट कैप चला गया एक सेशन में, जस्ट एक सेशन में टैंक बाय 9%। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, वो न्यूज निकलता रहेगा, आता रहेगा। और ये जो आईटी रेट्स की बात हुई थी कल पॉलीकैब में, वो दिसंबर से हो रहे थे, राइट, तो मे भी हो सकता है फरवरी में भी कुछ न्यूज आए, और 6 महीने में किसी को ये याद नहीं रहेगा, सब आगे बढ़ जाएंगे। और पॉलीकैब का
स्टॉक प्राइस भी पता नहीं आगे बढ़ जाए, वी डोंट नो. इट हैज बीन अ स्टेलर परफॉर्मर. तो और बहुत लोगों ने तो मे भी खरीदा भी होगा आज. ओके. And volume, if we can see, IRFC again is at a really high volume, and the lowest you can see Safari, which is also our मतलब क्लास में सबसे खराब परफॉर्म करने वाला स्टूडेंट है ये. वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन पोर्टफोलियो करेंटली. एंड या होपफुली वी रीबैलेंस सून एंड सफारी जल्दी से निकल जाए. And okay, I don't think we have anything further, anything major. ऐसा कुछ there has been no movement. Okay, so this is मोटा मोटी पोर्टफोलियो का हाल आज ये था. And one other thing is that the portfolio I think moved by 0.6% or something, and the Nifty 500 index moved by 0.2% or something. And this is very telling in the sense कि मतलब on overall level अभी तक अगर हम मिड नवंबर से बात करते हैं तो हमारा ये पोर्टफोलियो अभी भी इंडेक्स को लैग कर रहा है. इट इज लैगिंग दी निफ्टी 500 इंडेक्स बाय ऑलमोस्ट बाय 2.3% और समथिंग. पोर्टफोलियो का लिंक लाइव है, तुम कभी भी एक्सेस कर सकते हो, उसमें वो मिल जाएगा कि कितने से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. और कभी भी ये ऊपर भी जा सकता है, कभी ये मतलब नीचे भी आ सकता है. आई एम होपिंग फॉर इट टू क्रॉस द इंडेक्स रिटर्न्स, बट ओवर अ शॉर्ट पीरियड हम ऐसा बोल नहीं सकते कि मोमेंटम आउट परफॉर्म करेगा इंडेक्स को, इवन इन अ वेरी लाइक लार्ज बुल रन. और बियर रन में तो डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करेगा मोमेंटम, राइट. और ये ऊपर से फिर लॉन्ग ओनली मोमेंटम भी है. वी आर नॉट डूइंग एनी शॉर्टिंग पोजीशंस हियर. Okay, the portfolio, if you want to access the portfolio, link हमेशा description में रहता है. You can go, it's a Google Sheets, प्राइस रियल टाइम में अपडेट होता रहता है, तुम कभी भी जाके देख सकते हो. यहाँ पे मतलब सारी चीजें मैं जब चेंज करूंगा अपने पोर्टफोलियो में तभी मैं इधर स्टॉक के नाम चेंज करूंगा. जैसे कि जनवरी 15 को रीबैलेंसिंग है, and January 15 I'll be out, so I will do the rebalancing as per Jan 15 prices on Jan 16. so January 16 around 2:30 PM 2 PM के आसपास मैं rebalance कर दूंगा अपना. और January 16 को ही मैं नए जो 5-6 स्टॉक्स जो भी हैं कल के एनालिसिस के हिसाब से तो 6 स्टॉक्स निकलने वाले हैं पोर्टफोलियो से इस साइकिल में. तो जनवरी 15 को नए 6 स्टॉक्स आ जाएंगे. द नेम्स, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस वीडियो यू वुड ऑलरेडी नो स्टॉक्स लाइक BSE, एंजल वन, कल्याण ज्वेलर्स, राइट. सम ऑफ दो स्टॉक्स मे कम. तो वो तो ठीक है, जनवरी 16 को ही मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से नए दिग्गज आए हैं, एंड आई विल अपडेट दोस इन द लाइव पोर्टफोलियो एज वेल, एंड यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम. ओके, सो दिस वाज अबाउट टुडे. वीडियो तो वैसे छोटा ही करना है क्योंकि मतलब डेली का है ये, राइट. डेली में तो फिर आधे घंटे का बना के कोई मतलब नहीं है ज्यादा. बट देखते हैं ये वीडियो कितना खिंचता है. मेरी टेंडेंसी भी रहती है थोड़ी बहुत कि मैं और ज्यादा बोल जाऊं, कोई पॉइंट अभी याद आ जाता है तो मैं बोलता रहता हूं. तो होपफुली आई कीप इट शॉर्ट इनफ फॉर यू. Okay, so this is the topic that you might have seen on the thumbnail. Chalet Hotels. I hope I'm pronouncing it right. I don't know the pronunciation. I hope it's Chalet Hotels, or it can be chalet or something. I don't know. But anyway, it's a noun, I guess, so I can say it in whatever way I want. So Chalet Hotels, if you see, the stock has risen almost by 117% in the last 1 year. और ये मोमेंटम स्क्रीनर पे आज मेरे को दिखा था. मतलब मैं देख रहा था जस्ट कि कौन सा कोई नया स्टॉक कुछ आ रहा है क्या. तो दिस हैज नॉट मेड द कट. ऐसा नहीं कि ये मतलब टॉप 20 रैंक में अभी आ गया है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि अगर टॉप 20 रैंक में आ जाए तो हम खरीद लेंगे, राइट. दिस इज जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस. अगर टॉप 20 में आता है एंड ऑल द स्टॉक्स अबव इट आर ऑलरेडी इन द पोर्टफोलियो एंड देयर इज अ फर्दर वैकेंसी, तभी वो आएगा पोर्टफोलियो में, नहीं तो वो वहीं का वहीं बैठा रहेगा, राइट. अभी ये टॉप 20 में आया भी नहीं है और इसके ऊपर बहुत सारे
क्या बोलते हैं, जैसे प्रबल दावेदार हैं, जैसे एंजल वन हो गया, या आई थिंक इवन बजाज ऑटो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हैल, all these stocks are currently ranked above Chalet Hotels. So मोस्ट लाइकली ये जनवरी 15 में तो घुसने नहीं वाला, ना ही मैं इसमें कोई पोजीशन बना रहा हूं, ना ही मैं इसको खरीद रहा हूं. ये जस्ट मैं बता रहा हूं कि लुक एट द ग्राफ एंड वी विल आल्सो लुक एट सम कंपैरिजन विद its peers. So if you can see some other players in the hospitality industry, so hotels से तो पता ही चल गया होगा ये hospitality में है, and if you see other players like Indian hotels, काफी सुना होगा in news media and all, महिंद्रा हॉलीडे, लेमन ट्री तो काफी ही फेमस है, आई थिंक बहुत लोगों ने इसको खरीदा है. पर if you see the performance, right, there is one thing that I wanted to show. Of course मैं थोड़ा सा metrics भी बताऊंगा, मेरी fundamental की पकड़ उतनी ज्यादा कुछ नहीं है, but for those of you who are interested, right, मैं ये बता सकता हूं कि fundamentally कोई मतलब ताबड़तोड़ स्टॉक नहीं है ये Chalet Hotels, right. If you and but चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि बस एक बार ग्राफ देखो, ये चारों स्टॉक्स का ग्राफ देखो, and you see the kind of volatility and ups and downs in the other three stocks. इंडियन होटल हो गया, महिंद्रा तो पता नहीं साइडवेज, पता नहीं कितने महीने, ये 3 महीने का साइडवेज जा रहा है वो अपने पीक के बाद. एंड आई थिंक लेमन ट्री इज क्लोजर, आई वुड से, बट क्लीनेस्ट ग्राफ, मतलब जो सीधा, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना मोमेंटम में हमको क्या चाहिए होता है, हमको बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं चाहिए. 45 डिग्री एंगल से ऑलमोस्ट कोई अगर ऊपर जा रहा है, that's the best one. I showed you the Angel One chart, right? Angel One पूरा consistently ऊपर जा रहा है. हमको वैसे स्टॉक्स मेरे को तो बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि उन स्टॉक्स में प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है. I mean, मेरा कंफर्ट लेवल ज्यादा होता है. Sorry. So even if my comfort level is not that high, it's not that I won't buy, but it just feels better in a way, if I put it that way, right. So यहाँ पे देखो Chalet Hotels का ग्राफ, it's really good compared to the other three peers. और अगर हम फंडामेंटल में देखें तो पहली बात प्राइस एक्शन का देखते हैं. जैसे मोमेंटम में हम बोलते हैं भाव भगवान छे, तो भाव सब कुछ है, राइट. हमको अगर कोई चीज भाग रही है और हमको नहीं पता कि वो क्यों भाग रही है, तो हमेशा ये जानना जरूरी नहीं होता कि क्यों भाग रही है, राइट. अगर तुम फंडामेंटल हो तो ठीक है, तुम रीजन ढूंढते रहो, बट जब तक तुम रीजन ढूंढते रहोगे 1-2 महीने में और शायद प्राइस बढ़ जाए. तो वी जस्ट स्टिक विद द परफॉर्मर्स. अगर हम इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 117% रिटर्न है 1 साल में, वर्सेस 48% फॉर इंडियन होटल, 51% फॉर महिंद्रा हॉलीडे एंड 74% फॉर लेमन ट्री. अब ये जो बाकी 3 है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके रिटर्न्स कम है, मतलब हेल आई वुड टेक 48% एनी डे, मतलब इनकी जो लीस्ट परफॉर्मिंग है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरा ही बढ़ रहा है, और आने टाइम में मे बी और भी बढ़ सकता है, पर इनका जो लोएस्ट भी है 48% लोएस्ट है 1 ईयर रिटर्न इन चारों में, वो भी मतलब मैं तो खुशी खुशी ले जाऊंगा, राइट. बट अगर 1 मिनट के लिए हम उस फैक्ट को साइड करते हैं कि ठीक है इंडस्ट्री पूरा बढ़ रहा है, बट इंडस्ट्री में भी देखो कि डाइवर्जेंस कितना है. कोई 48-50 दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आधा से भी कम, और कोई सीधा 117%. तो इसमें मतलब although you are taking a sector call, you might be taking a sector call sometimes, but momentum में ये तुमको दिख जाएगा कि उनमें से कौन सा घोड़ा सबसे तेज भाग रहा है, राइट. ओवरऑल स्टोरी इस सेक्टर का ये है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, राइट, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ रही है, और सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब हमको जितने ज्यादा रूम्स चाहिए इस लेवल के. सो first of all, like Chalet Hotels, you might have seen the logos on the thumbnail. If you haven't seen, तो ये लग्जरी या सेमी लग्जरी प्रीमियम टाइप की होटल्स को ऑपरेट करता है, जैसे शेरेटन हो गया, राइट, या आई थिंक 1-2 और थे, मैरियट हो गया, राइट, JW मैरियट. सो दीज होटल्स दे काइंड ऑफ ऑपरेट, and such the demand for such rooms is actually outpacing the
द अमाउंट ऑफ सप्लाई वी हैव, राइट। और ये परसिस्ट भी करने वाला है लगभग एटलीस्ट 1-1.5 साल तक तो परसिस्ट करने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक प्राइस में मोमेंटम परसिस्ट करने वाला है, मैं बोल रहा हूँ डिमांड आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई परसिस्ट करने वाला है, राइट। तो ये है ये मतलब ओवरऑल स्टोरी। किसी को अगर स्टोरी पसंद है, क्योंकि स्टोरी सबको पसंद होती है, सबको जानना होता है भाई क्यों चढ़ रहा है इंडस्ट्री, क्यों भाग रहा है, सबको मतलब मजा आता है स्टोरी जानने में, राइट। हम तो स्टोरी ना हो तो भी पकड़ लें स्टॉक को, बट अगर स्टोरी जाननी है तो ये एक स्टोरी है, ये एक पॉइंट है कि डिस्कशनरी कंजम्पशन बढ़ रहा है और सप्लाई साइड पे कंस्ट्रेंट्स हैं थोड़े। और शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स भी कुछ कुछ हैं, जैसे अभी वो राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है अयोध्या में, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल अराउंड दैट। आई एम नॉट श्योर व्हाट स्पेसिफिकली वुड लीड टू लाइक अ स्टॉक प्राइस अपटिक इन ईदर ऑफ दीज नेम्स, बट मतलब इस तरह की मतलब लग्जरी बुकिंग ट्रैवल जो भी हो रहा है उसके वजह से कुछ शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स हैं। बट अगर फंडामेंटली किसी को मैं ये स्टॉक बोलूंगा वो कभी नहीं लेगा शायद, क्योंकि इफ यू लुक एट दी आरओई आरओसी जो हम मतलब मेन मेट्रिक्स हम देखते हैं, राइट, आरओई आरओसी सब मतलब 10% भी नहीं है, राइट। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई कोई स्टॉक जो आरओसी आरओई 10% भी नहीं है इसका, मतलब फंडामेंटली नॉट अ वेरी ब्राइट स्टॉक, राइट। 10% भी नहीं है वो, मतलब अर्निंग्स बहुत ज्यादा तो दे नहीं सकती, तो तुम फंडामेंटल वाले तो ये देख के निकल जाएंगे, पहले देख के निकल जाएंगे। और जो इस लेवल पर नहीं निकला होगा वो वैल्यूएशन देखेगा कि पी 66 है, 65 के ऊपर है, और ये सिर्फ मतलब लेमन ट्री से कम है, इस पूरे पैक में ये सिर्फ लेमन ट्री से कम है। तो जो मतलब आरओई और आरओसी देख के जो फंडामेंटल वाला नहीं निकलेगा वो पी देख के निकल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि भाई रिस्क रिवॉर्ड है नहीं इसका सही। और मैं मानता हूं कि सही नहीं है, राइट, मैं मना नहीं करता हूं, फ्रॉम अ फंडामेंटल लेंस इट डजंट मेक मच सेंस टू एक्चुअली पिक दिस स्टॉक। बट अब क्या करें, भाव भगवान से, अगर भाव बढ़ रहा है तो मार्केट को शायद ऐसा कुछ पता है जो हमको नहीं पता है, मतलब हमको इन मैट्रिक्स में नहीं दिख रहा है, कुछ तो पता है, राइट। तो मार्केट भगा रहा है स्टॉक को और उसके साथ भागने में मतलब वी फील मोर कंफर्टेबल रनिंग विद इट रादर देन स्टैंडिंग अगेंस्ट इट कि भाई तुम्हारा आरओई बहुत बुरा है तो तुम्हारा स्टॉक प्राइस बढ़ता जाए तो भी पैसा ना लगाऊं, राइट। क्यों पैसा ना लगाऊं, अगर स्टॉक बढ़ मेरे को तो पैसा कमाना है ना। अब आरओई उसका खराब है पर फिर भी मार्केट भगा रही है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि मतलब सारे स्टॉक्स हमेशा परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई 1-2 साल तक परफॉर्म करेगा। इवन एशियन पेंट्स इन इट्स लाइफ टाइम देयर वर अराउंड आई थिंक इन द 90s देयर वर 7 or 8 years, 90s और 80s आई डोंट रिमेंबर, मतलब मैं तो उस टाइम था नहीं बट आई हैव हर्ड अबाउट इट, जब एशियन पेंट्स डिडंट परफॉर्म, डिडंट मूव एट ऑल। तुम देख रहे होगे very nice performing banks, fundamentally amazing banks, the darling of all fundamental investors like Kotak Bank and all, they are not performing। तो और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल को परफॉर्म ना करें, हो सकता है नेक्स्ट 2 साल में कोटक बैंक मतलब हर साल 20% रिटर्न दे दे, राइट, वी डोंट नो दैट। बट हम कब तक वेट करते रहें कि कोई स्टॉक बढ़ेगी, राइट। हम स्टोरी में अगर बिलीव करके रुक जाएंगे तो हम रुके ही रहेंगे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, वो पैसा हम कहीं और नहीं लगा पाएंगे। रादर देन दैट मेरा थिंकिंग ये है पर्सनली कि अगर कोटक बैंक इतना अच्छा भागने लगा, राइट, अगर भागने ही लगे ये सारे तो अच्छा है, फिर मतलब मेरे स्क्रीनर में भी आ जाएगा एंड आई वुड बी हैप्पी, राइट, बिकॉज अगर फंडामेंटली भी अच्छा है स्टॉक और मोमेंटम स्क्रीनर में भी आ गया तो फिर बल्ले बल्ले बढ़िया ले लो, राइट। The final point which I have already said is that we do not do speculative buying, और मतलब कुछ होने से पहले, मतलब स्क्रीनर में आने से पहले, एंट्री क्राइटेरियन मीट होने से पहले कूद के स्टॉक नहीं लेना है। ऐसे ही हमारे बीच में लाइक कुछ स्टॉक्स आए थे, जैसे एनएलसी इंडिया हो गया, वो बीच में भी आई थिंक वीकली रिव्यू बन के बाद वो स्टॉक आया था। तो उस टाइम पे जा जाके नहीं खरीदना अनलेस यू हैव इन सम अदर पोर्टफोलियो, मतलब कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी हैं उस वो के, जैसे मेरे पास एंजल वंस के ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स थे एंड आई एम सिटिंग ऑन पॉजिटिव रिटर्न्स करंटली, इवन दो इस मोमेंटम पोर्टफोलियो में वो अभी तक आया नहीं है। होपफुली जनवरी 15 में वो आ जाएगा, बट वो जनवरी 15 के बाय प्राइस के हिसाब से होगा, राइट। मेरे को ये अज्यूम नहीं करना है कि जनवरी 15 को पक्का एंजल वन आएगा तो मैं दिसंबर 25 से ही खरीद कर रख लेता हूं, राइट। वी मतलब देयर आर सम स्ट्रेटजीज अबाउट स्टैगर्ड
like buying, but staggered buying cuts both ways. ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कोई चीज 100 रुपए में ली है और कल को वो हो गया 90, तो तुमने बोला अच्छा मैंने आधा लिया था तो अब मैं 90 में और आधा ले लूंगा। बट वो दूसरा भी हो सकता है कि अगर 100 में तुमने लिया और 120 हो गया, फिर यू आर थिंकिंग कि भाई अब 120 में कैसे लूं, तुम्हारा एंकरिंग बायस हो गया है कि तुमने 100 में लिया था, सो 120 में तुम ले सकते, राइट। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, मतलब आगे कूद के नहीं लेना है। जब एंट्री क्राइटेरियन जब मीट होता है तभी खरीदो, जब एग्जिट क्राइटेरियन मीट होता है तभी बेचो, बाकी का राम भरोसे है, ठीक है। सो दिस वाज द व्यू ऑन, I mean not a view, this is just a small discussion on Chalet Hotels. तुमको अगर और ज्यादा रिसर्च करनी है, तुम अगर फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, you want to look into this stock, growth investor, whatever kind of investor you are, if you want to look, you can go on Screener, you can go on anywhere and basically look, research more on this stock. But it looks promising, and if it comes in our Screener, of course we'll buy. So that was it for today. So let me know in the comments below कि daily मतलब review करने का format कैसा है. If you want to see something else on this video, I'll try to include that as well. And we'll see you soon in the next video.